اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، تو آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ہماری کلاس تھوڑی ڈفرینٹ ہے. آج مطلب وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹڈی انٹل وی فنش دس ڈسکشن. اگر ہماری ڈسکشن ختم ہو گئی اور ٹائم ہوا، لیکن ہم رش نہیں کریں گے، آرام سے ڈسکس کریں گے تاکہ سب پوائنٹس ہمیں ایک دوسرے کو کلیئر ہو جائیں. اور جو انشاءاللہ میں نے آپ کو ایجنڈا بھیج دیا ہے تو آپ سب نے ایجنڈا پڑھ لیا ہوگا. اس ایجنڈا کے مطابق انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آج ڈسکشن کریں گے. اور یہ ڈسکشن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا پلان یہ تھا کہ ہم اس کو 10 کلاسز کے بعد کر لیں گے، 10 لیسنز کے بعد کر لیں گے، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ وہ 10 لیسنز کے بعد نہیں ہوا، پھر 20 ہو گئے، اب 21 ہو گئے. تو اب میں نے کہا اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم کریں، کیونکہ وی ہیو ٹو سی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، ڈائریکشن جو ہماری ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آج میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. فرسٹ تھنگ آن دی ایجنڈا از ٹو ویلکم. تو میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں کہ آج ہمارا الحمدللہ 21 لیسنز ختم ہو گئے ہیں CIU اردو کے اس کورس کے، جس میں ہم ورڈ فار ورڈ قرآن بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ روٹ لیٹرز کر رہے ہیں، اس کے ساتھ گرامر بھی کر رہے ہیں، تفسیر بھی تھوڑی کر ہی رہے ہیں. پلان نہیں تھا اتنی تفسیر کرنے کا، لیکن آئی تھنک لوگ چاہتے ہیں کہ تفسیر کریں. لوگوں کا مجھے جو فیڈ بیک ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ورڈ فار ورڈ سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، تھوڑی تفسیر. سو آئی ڈونٹ گیو اے لاٹ آف تفسیر، آئی گیو دا تفسیر فار دیٹ پرٹیکولر انسیڈنٹ، یا وہ ورڈ جو ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا اس انسیڈنٹ کے بارے میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ آج ہمیں موقع ملا ہے. آج ہمارا 22 لیسن ہونا تھا، اس کے بدلے میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں ٹو دس ڈسکشن. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں جو نہیں آئے ہیں. کوشچن یہ تھا کہ ہم ان کے لیے ریکارڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ابھی کلاس سے پہلے کہ ہاں ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور تاکہ وہ لوگ جب سنیں، کچھ لوگ ہیں جو پاکستان میں یا انڈیا میں ہیں یا جہاں بھی ہیں، تو کم از کم ان کو ریکارڈڈ یہ مل جائے. جب ان کا ٹائم ڈیسنٹ ہوگا تو وہ بھی اپنا فیڈ بیک، ریٹن فیڈ بیک، جیسے کہ لاسٹ ٹائم ڈسکس ہوا تھا، شمیم نے کہا تھا کہ ریٹن فیڈ بیک لیں. میں نے کہا آئی ایم آلسو آف دیٹ اوپینین کہ کسی کو کوئی اسپیشل فیڈ بیک دینا ہے تو وہ اپنا ان پٹ جو ہے وہ ریٹن مجھے علیحدہ سے دے دیں. اگر اسی پہ ڈالنا چاہیں تو اسی پہ ڈال دیں، علیحدہ سے بھیجنا. اف یو وانٹ کہ آپ کی وہ کانفیڈینشیلٹی رہی، آپ نے جو کچھ بھی مجھے بھیجا کانفیڈینشیل رکھنا چاہتی ہیں، تو پھر آپ مجھے علیحدہ میرے نمبر پہ ڈفرینٹ ونڈو میں آپ مجھے بھیج دیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سب کو معلوم ہے تو پھر آپ اسی میں آپ ڈال دیجئے. تو میٹنگ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ سیکنڈ پوائنٹ آن دی ایجنڈا، میٹنگ کے آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ ہم نے اب تک جتنا بھی پڑھا ہے، میں نے آپ کو فرسٹ ڈے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ نارملی جب ایک ورڈ فار ورڈ کلاس ہوتی ہے یا تفسیر کلاس ہوتی ہے، اس میں کیا ڈفرینس ہوتی ہے، اور ایک دورہ قرآن ہوتا ہے اس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ ورڈ فار ورڈ اس لیے کرتے ہیں، وی وڈ ایکچولی لائک ٹو نو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایکچوئل ورڈز کیا ہیں. اینڈ اے لاٹ آف پیپل ہیو شوڈ دیئر انٹرسٹ کہ ہمیں ورڈ فار ورڈ ہمیں سیکھنا ہے. تو کچھ لوگ ادھر ہیں، کچھ لوگ اس کے علاوہ بھی ہیں، کچھ لوگ فیس بک پر سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور مجھے بتا رہے ہیں. تو اچھی بات ہے الحمدللہ، ورڈ فار ورڈ اگر لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے تو دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ ورڈ فار ورڈ قرآن، تو وی نو واٹ ایگزیکٹلی اللہ ہیز سیڈ، اللہ کے اپنے الفاظ کیا ہیں. اور پھر بعد میں جو انٹرپریٹیشن ہے، جو تفسیر ہے، وہ لوگوں کی ہے. لیکن تفسیر اگر کلیئرلی قرآن اور سنہ کے مطابق ہے، یعنی دا قرآن از ایکسپلیننگ دا سیم تھنگ ایلس ویئر، تو وہ تفسیر ٹھیک ہے، بالکل 100% ٹھیک ہے. مطلب اٹس ایکسپلیننگ سم تھنگ، جو چیز ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں وہ ایلس ویئر ایکسپلین کر دیا گیا اس ورڈ کو. اسی طرح اگر حدیث میں، اوتھینٹک حدیث میں، تو وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ایز گڈ ایز دا قرآن. قرآن اللہ کے ورڈز ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آئے. حدیث بھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات بتائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم تک پہنچاتے رہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتے ہیں سورہ النجم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کچھ کہتے ہیں. جو اپنی مرضی سے کرتے تھے ان کی پرسنل لائف کی وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اس سے ہم نہیں ڈیل کر رہے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اندر انکلوڈیڈ ہے. ہم جن چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں وہ یہ ایشوز ہیں جو قرآن کی تفسیر کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ نے خود تفسیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کلیئرٹی بتایا اللہ کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کریں. تو ہم لوگ اس لیے ہماری اس میٹنگ کے آبجیکٹیوز یہی ہیں کہ ہم دیکھیں کہ آر وی فالوئنگ دیٹ اور ناٹ. ابھی تک ہمارے جو 21 لیسن ہو چکے ہیں، ہم ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، اور ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے، کس طرح ہم. مین پوائنٹ جو ہے اس میٹنگ کا، اس ڈسکشن کا یہ ہے کہ ہاؤ ٹو امپروو.
this class. अब इसमें मैं ये नहीं इनवाइट कर रही हूँ कि आप लोग कहें कि मैं अच्छा बोल रही हूँ या बुरा बोल रही हूँ या क्लास अच्छी है या बुरी है, ये कमेंट्स एक तरफ हैं, हमने प्रैक्टिकल बात करनी है, ये चीज नहीं करनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए, ये चीज बेनिफिशियल है, ये चीज इतनी ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स यही, मेन ऑब्जेक्टिव यही है, एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है कि हाउ टू इम्प्रूव दिस क्लास, इसके और किस किस चीज को इम्प्रूव करना और किस चीज की हम नजरसानी कर रहे हैं। नंबर 1 हम देख रहे हैं, ये थर्ड पॉइंट ऑन द एजेंडा है, हम ये देख रहे हैं कि क्लास के जो डेज हैं हमने ट्यूसडे और थर्सडे रखा हुआ है। ये आप लोग मुझे अपना फीडबैक दें, जैसे ही मैं बात खत्म करूंगी इंशाल्लाह आप मुझे अपना फीडबैक दें कि आप लोगों के लिए ट्यूसडे थर्सडे ठीक है कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि फ्राइडे सैटरडे संडे उनके लिए ठीक नहीं है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे हम नहीं, संडे वैसे भी मेरी क्लास होती है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे को बीच में से हमने निकाल दिया था। मंडे थ्रू थर्सडे हमारे पास टाइम है। बहुत लोगों ने ये भी कहा या हमने डिस्कस किया तो उन्होंने कहा मंडे को नॉर्मली होता है कि संडे को कहीं से थके हुए वापस आते हैं, मंडे को सुबह बहुत मुश्किल होती है क्लास अटेंड करना, तो इसलिए हमने ट्यूसडे रखा था और फिर एक गैप रखा था ताकि 2 दिन एक साथ करने के बदले हम ट्यूसडे और थर्सडे रख लें, ताकि वेडनेसडे को मुझे टाइम मिले कि मैं कुछ तैयारी कर लूं, आपको टाइम मिले कि आप एक ब्रेक ले लें, तो इसलिए हमने ट्यूसडे थर्सडे रखा था। हाउएवर अगर आप लोगों को लगता है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन ये है कि आप लोग अपना फीडबैक दीजिए कि आप लोगों को ये ट्यूसडे थर्सडे ठीक लगता है कि आप चेंज करना चाहती हैं, फिर डिपेंड करेगा कितने लोग क्या कह रहे हैं। नंबर 4 ऑन द एजेंडा इज क्लास टाइमिंग। टाइमिंग हमारी है कि हमने ये रखा था, हमारी क्लास नॉर्मली 11:30 से 1 बजे तक होती थी, तमाम क्लासेस हमने जब से CIU की स्टार्ट की थी क्लासेस यही टाइम होता था। लेकिन अब जब चूंकि ये कुरान की तफसीर है और कुरान का वर्ड फॉर वर्ड है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें इसको चूंकि हम मेमोराइज करना चाहते हैं इस इन मीनिंग्स को, और हम उसको इंटरनलाइज करना चाहते हैं और मेमोराइज करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो ये कहते हैं कि वी शुड हैव अ शॉर्टर ड्यूरेशन। और जितने भी स्कॉलर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर कुरान आप सीख रहे हैं तो उसको 1 घंटे से ज्यादा का स्पैन ना रखें, आपकी जो है वो फोकस खत्म हो जाती है, अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। तो हमने इसलिए क्लास की टाइमिंग रखी थी 1 घंटे की। तो इसमें क्लास टाइमिंग और ड्यूरेशन दोनों आ रहे हैं, एजेंडा में जो पॉइंट्स 4 और 5 हैं दोनों आ रहे हैं। क्लास टाइमिंग हमने रख ली फिर 12 से 1 तक, और ड्यूरेशन जो है वो हमने रख ली 1 घंटे की इंस्टेड ऑफ 1.5 घंटे की। और उसमें यह है कि मैंने आपको ये कहा था कि मैं 50 मिनट्स पढ़ाऊंगी और 10 मिनट्स क्वेश्चन आंसर होंगे या कॉमेंट्स होंगे। तो वो कभी कभी मैं 1 बजे तक चली जाती हूँ, बिकॉज इतना थोड़ा पढ़ा होता है कि दिल चाहता है कि थोड़ा और पढ़ा दो, या आयत खत्म नहीं होती है, या दी आयत इज कंटिन्यूइंग विद द प्रीवियस आया। तो इस वजह से मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या ये टाइमिंग्स आपके लिए ठीक है 12 से 1 तक, या कुछ आगे पीछे करना चाहते हैं, और ड्यूरेशन भी ठीक है कि नहीं है, ये भी आप मुझे अपना फीडबैक दें। कोर्स कंटेंट, असल जो अब मेन चीज है ना इन चीजों के बाद कोर्स कंटेंट है। कोर्स कंटेंट में आपने देखा कि सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं आप लोगों को एक आयत पढ़ के सुना देती हूँ, फिर मैं उसके एक एक वर्ड पे जाती हूँ, फिर मैं उसके रूट लेटर्स आपको बताती हूँ, फिर मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताती हूँ, उर्दू ट्रांसलेशन बताती हूँ, वो सब खत्म करके फिर मैं उसके ग्रामेटिकल एनालिसिस पे जाती हूँ, और उसके बाद मैं तफसीर पे जाती हूँ। अब मेरी कुछ कंसर्न्स खुद की हैं, मुझे ये लग रहा है, इट्स नॉट दैट आई फील डिफिकल्ट या मुझे ऐसा लगता है मैं ना पढ़ाऊँ, आई वॉन्ट वट एवर आई नो, आई वॉन्ट टू टीच ऑल ऑफ यू। मैं आपको हल्फिया कहती हूँ। दूसरी बात यह है कि मैंने ये नोटिस किया है कि जब हम ग्रामर में बहुत डिटेल में चले, एक तो आपको मालूम है हमारे पास 3 लेवल के लोग हैं। एक लेवल वो है जिन्होंने मेरे साथ अरबिक 1 से लेके अरबिक 5 तक मेरे साथ पढ़ा था, ठीक है, उनको अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रूल्स मालूम है, वो फिर उस वक्त सवाल भी नहीं पूछते हैं, उनको सब समझ भी आ जाती है। तो ट्रांसलेशन तो मैंने उनके साथ नहीं किया, तो ट्रांसलेशन उनके लिए भी अच्छा है जिन्होंने खुद भी ट्रांसलेशन किए। में हमारी क्लास में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पूरा वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन किया हुआ है with other teachers, alhamdulillah, and this is marvelous because they can help us. दूसरी बात यह है कि इंग्लिश उर्दू दोनों में चल रहा है कंटेंट। तीसरी चीज जो मैं आपको कह रही हूँ ना ग्रामर का है, वो सिर्फ जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनकी वजह से मैंने एक्चुअली, हमने जब ये क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने उनके कहने से इसरार पे मैंने शेख मुस्तफा को राजी किया था कि आई वांट टू डू अ वर्ड फॉर वर्ड कुरान एंड विद ग्रामर, और उन्होंने अग्री किया था। तो मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये मालूम है हमने क्यों स्टार्ट किया था। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि शायद उनके लिए, बल्कि मुझे लगता है जरूरी उनके लिए ग्रामर थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा होगा, और जब ग्रामर मुश्किल हो रही है तो उसकी वजह से ये होता है कि वो थोड़ी सी उकताहट भी आ जाती है। मुझे अभी किसी ने कहा नहीं है कि वो उकता जाते हैं, मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, मुझे खुद ये फील हो रहा है कि जब मैं
ट्रांसलेशन कर लेती हूँ, उसके बाद जब मैं ग्रामर वाले हिस्से पे आती हूँ, एक आयत की ग्रामर पे आती हूँ या आधी आयत की या 1/3 आयत की ग्रामर पे आती हूँ, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारा बस एक रेपिटेशन हो रहा है। मुझे तो बैठ के तैयारी करनी पड़ती है, मैं तो एक एक लफ्ज का ग्रामर लिखती हूँ अपने सामने, ताकि मैं उस वक्त बोल रही हूँ तो मैं ढूंढने ना जाऊं, सोचने ना जाऊं, तो आई पुट इट ऑन माई लैपटॉप कि भाई ये इसम है, ये कौन सा इसम है, ये प्रॉपर नाउन है कि ये प्रोनाउन है, कि ये किस टाइप का इसम है। आपको पता है हमारे अरबिक ग्रामर में, अरबिक में 3 किस्म के वर्ड्स होते हैं, या तो इसम होते हैं, या फेल होते हैं, या हर्फ होते हैं। तो इसम की फिर डिटेल में हम जाते हैं, फिर अगर फेल है तो फेल मादी है कि मुदार है कि फेलुल अमर है, ये सब में हम चले जाते हैं। फिर उसके बाद हर्फ है, तो ये किस टाइप का हर्फ है, हर्फ निदा है कि हर्फ ताकीद है कि क्या है। तो इस तरह करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेकिन अब मुझे ये फील हो रहा है कि इट इज बिकम लाइक मुझे लगता है बोरिंग हो रही है, ठीक है ना। आई डोंट नो वेदर इट्स बोरिंग फॉर यू और नॉट, मुझे फील हो रहा है कि ये बोरिंग हो रही, इट्स गेटिंग टू मच। और इसकी वजह से मेरी कंसर्न ये है कि मुझे लगता है कि हम instead of covering a little bit more, we are covering a little bit less. And मैंने आपको कोई टारगेट नहीं दिया था कि मैं 5 आयतें करूंगी या 6 आयतें करूंगी। नॉर्मली क्या होता है, कहते हैं 5 आयतें इज अ गुड अमाउंट टू डू इन 1 डे। 5 आयतें से ज्यादा सीखने के लिए भी, मेमोराइजेशन के लिए भी कहते हैं नहीं, और इसके लिए भी। तो 5 आयतें अगर हो जाए तो ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर 5 की 6 हो गए, 7 हो गई तो भी ठीक है। लेकिन कभी कभी इतना वो ग्रामर और सेम वर्ड्स रिपीट हो रही हैं, ये मुदाफ है, ये मुदाफ इलैहि है, ये मंसूब है, ये मजरूर है, ये इस तरह करके ना मुझे लग रहा है कि वी आर गेटिंग टू मच इनटू जस्ट रिपीटिंग, रेपिटेशन हो रही है। तो अब आप लोगों से मुझे स्पेशली खास कर ये कंसर्न, तो मैं मेरी जो पुरानी स्टूडेंट्स है ग्रामर की, उनके लिए मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे, मैं 100% श्योर हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको समझ आ रही है, और आपको पहले से भी आती थी, क्योंकि आप लोगों ने मेरे साथ ग्रामर किया भी, आप लोगों ने मेरे साथ क़िसस नबीन भी किया था, और उसमें भी हम ग्रामर करते थे, उसमें भी मुदाफ इलैहि करते थे, उसमें भी मंसूब मजरूर करते थे, तो ये मरफू ये सब हम करते थे। तो वो लोग मुझे पता है कि इंशाल्लाह समझ रही हैं। अगर आप जो पुरानी स्टूडेंट्स हैं, मेरी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो आगे बढ़ चुकी हैं बहुत, अगर वो समझती हैं कि अगर मैं इस ग्रामर को टोटली ओमिट कर दूं, छोड़ दूं यहाँ पर, और हम वर्ड फॉर वर्ड सिर्फ ट्रांसलेशन कर दें उर्दू में और इंग्लिश में, और साथ साथ मैं थोड़ा सा ये बता दूं जिस तरह अभी मैं बता रही हूँ कि ये वो भी ग्रामर है कि वर्ड फॉर्म कौन सा है। जैसे मैं अभी नहीं कहती हूँ हदा यहदी हिदायतुन, इस तरह करती हूँ ना, तो वो उसका मतलब ये कि ये पास्ट टेंस है, ये मुदारे, ये फेल मादी है, फेल मुदारे, और ये मस्तर है, ये मैं करती रहूंगी। और इसके साथ मैं वर्ब फॉर्म बता दूं कि इस से शुरू हो रहा है, कि इन से शुरू हो रहा है, तो ये फॉर्म 10 है कि फॉर्म 8 है कि फॉर्म 5 है कि फॉर्म 4 है, और ये चीज या बाब कौन सी है, बाब तफाइल है या बाब फ़अला है, जो भी, तो ये चीजें मैं बता दूंगी। लेकिन क्या मैं इतनी डिटेल में जाऊं, मेरी जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछूं कि दोबारा मैं ये सब बोलूं कि ये दमीर मुत्तसिल है, ये दमीर मुनफसिल है, ये आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। क्योंकि उस वक्त फिर मैं जब करती हूँ जल्दी भी करती हूँ ताकि ये खत्म हो जाए, ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो उकता ना जाए, बोर ना हो जाए, उनको ऐसा ना लगे कि ये क्या हो रहा है। और पुराने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मालूम है। पुराने स्टूडेंट्स का अगर आप चाहें तो मैं एक अलग सेशन भी ले सकती हूँ, अगर उनको वो चाहते हैं तो मैं एक एक्स्ट्रा दिन रख के या कुछ करके, या एक एक्स्ट्रा हाफ एन आवर रख के उनसे एक सेशन लेके, अगर उनके कोई सवाल है। एंड एट द सेम टाइम अगर उसी वक्त जब आपकी क्लास खत्म होती है, उसी वक्त जब 10 मिनट्स होते हैं, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। उसमें भी अगर पुराने स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि ग्रामर ज्यादा एडवांस पढ़ चुके हैं, उनको अगर कोई सवाल है ग्रामर का वो पूछ लें। अगर नए स्टूडेंट्स जो हैं उनको नहीं सीखना है, तो आई थिंक वी शुड confined to just the translation and the तफसीर सब लोग कह रहे हैं कि उनको अच्छा लगता है और वो चाह रहे हैं कि मैं कंटिन्यू करूं। So the main focus is like whether we should continue with the grammar or not. So I want your honest feedback, not because I'm saying, मुझे honest feedback चाहिए। और अगर आप मुझे अलग लिख के भेजना चाहें तो अलग लिख के भेज दें, अलग मुझे फोन करके बोलना चाहिए, वॉइस मैसेज छोड़ना चाहिए, वॉइस मैसेज छोड़ दें। आप यहाँ सबके सामने बोलना चाहें, सबके सामने बोल दें। आपको पता है मैं उन लोगों में से नहीं हूँ who feels bad अगर मुझे कोई क्रिटिसाइज करे, मुझे कोई अग्री करे, नहीं अग्री करे। असल बात यह है कि वी हैव टू ट्राई एंड इम्प्रूव द क्लास, वी हैव टू मेक इट बेटर इंस्टेड ऑफ जो चीज हम देखें। हमारी वो क्लास नहीं है जो सालों साल से चल रही है, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की चलती रहती है, अलहुदा की चल रही है, तो एकना वालों की चल रही है, तो इफत मकबूल की चल रही है। जिस तरह इन लोगों की चल रही है, उनका एक पैटर्न है और वो सालों साल से चल रहे हैं। उनको चेंज करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उनका एडमिन है, उनका सब कुछ एक पूरा सेटअप है। मेरा कोई सेटअप नहीं है, आई एम जस्ट अलोन। मेरे साथ हेल्प करने वाले लोग हैं, मैं नाम नहीं लेती हूँ वरना मुझे
کوئی ناراض ہو جائے گا, کوئی ہیلپ کرتی ہیں مجھے تو یار کیا کروں فرحت, بولنا ہی پڑتا ہے. فرحت بلوانی ہیلپ کرتی ہیں, مجھ سے نہیں رہا جاتا ہے. آپ سب ان کا شکریہ ادا کریں, اور وہ بھی ناراض ہو جائیں گی کہ میں نے کیوں ان کا نام لیا, لیکن وہ مجھے ہیلپ کرتی ہیں. دیکھیں وہ لوڈ بھی وہ اپلوڈ وہ کرتی ہیں آن دا ویب سائٹ وہ کرتی ہیں, اور میرے لیے جب میں شروع میں آیت لکھتی ہوں, آیت بھی وہ میرے لیے نکال کے میرے لیے سب مجھے ہیلپ کرتی ہیں مجھے بھیجنے کے لیے. اس کے بعد میں بیٹھ کے کام کرتی ہوں, جس سے میرا کام جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا بہت مشکل تھا, جب فرحت کو دے دیا میرا کام بہت آسان ہو گیا الحمدللہ, میرا تھوڑا سا جلدی ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں سے اب میں اپنی میں نے کنسرن شو کر دی, ہو سکتا ہے میں کوئی پوائنٹ بھول گئی ہوں, اور کوئی اگر یہ پروپوز چینجز میری یہی ہیں کہ ہم گرامر کو ابھی آل ٹوگیدر چھوڑ دیں. اگر کوئی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے گرامر کا جو میں نے نہیں بتایا ہے اور جو اس میں بتانے کی بہت ضرورت لگ رہی ہے وہ میں بتا دوں تو وہ ٹھیک ہے, وہ آئی ول انکلوڈ انشاءاللہ. لیکن آپ لوگ مجھے بتائیے, اور miscellaneous اگر کوئی بھی چیز ہے آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں, کوئی اور ایسی چیز ہے جو ہم ڈسکس کر سکیں. اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, ابھی بھی شکریہ ادا کرتی ہوں, اینڈ میں بھی شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ ٹائم دیا, یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ میری کلاس اٹینڈ کرتی ہیں. آپ لوگ میرا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کو یہ سکھا سکوں, کیونکہ ہم سب کو انشاءاللہ سیم ثواب ملے گا, پڑھنے والے کو بھی پڑھانے والے کو بھی. ہم دین کی طرف بڑھ رہے ہیں, یہ ذکر کی محفل ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے, اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. تو پلیز آپ لوگ اب میں فلور اوپن کرتی ہوں, ایک آپ میں سے اپنا فیڈ بیک مجھے دیتا رہے. پلیز کیپ اٹ شارٹ, ٹو دا پوائنٹ, فوکس کر کے, اور یہ سب نہ بولیں کہ کلاس اچھی ہے کہ بری ہے, جو بھی ہے بولنا چاہیں تو بول بھی دیں, لیکن لمبا نہ کریں. اور کوئی کامنٹس کہ ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا, جسٹ کم ڈائریکٹلی ٹو دا پوائنٹ. اگر ایک دفعہ تمام ہماری یہ پروپوزلس ایکسیپٹ ہو جائیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن سے, اس کے بعد پھر وی کین اگین اوپن دا فلور اگر آپ کوئی اور ایڈیشنل کامنٹس ہیں. وی وانٹ ٹو فنش اٹ ود ان دا ٹائم انشاءاللہ. چلیں, جزاک اللہ خیر. آئی کین سی ناہید آپ کیا بولنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے یہ کہ آپ میننگ میں نا تھوڑا زیادہ ٹائم دیں ہم کو نا, لائک کبھی کبھار مس ہو جاتا ہے, تو میننگ اگر آپ ایک دفعہ پورا اردو میں کہیں, ایک دفعہ پورا انگلش میں کہیں, اوکے تو وہ ایزی ہوگا. I second Nahid. اوکے, اینی بڈی ایلس؟ ابھی اور آپ ناہید اپنا پورا بتا دیں, باقی چیزوں کا بتا دیجئے, ٹائم اور ڈیٹ اور یہ سب. اور ٹائم تو میرے خیال سے صحیح ہے, ڈے بھی صحیح ہے, ٹیوزڈے تھرسڈے. منڈے تھوڑا بزی ٹائم ہوتا ہے, تو ٹیوزڈے تھرسڈے از گڈ ڈے, Good, perfect. Days and timings are ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, پرفیکٹ فار ناہید اینڈ امینہ. شمیم آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ جی, پہلے وہ ڈیز کا کر لینا کہ ٹیوزڈے تھرسڈے سب کے لیے صحیح ہے. اف وی اسٹارٹ ووٹنگ آن اٹ سو وی ول بی ڈن وتھ ون آبجیکٹیو. تو وہ دونوں تو ابھی بتا دیا. باقی لوگوں کے لیے اگر زیادہ تر لوگوں کے لیے کنوینئنٹ ہے تو وی کیری آن ود دا سیم. اگر لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ٹیوزڈے تھرسڈے از ناٹ کنوینئنٹ, دین یو پروپوز کہ کون سا آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے, سوٹیبل کون سا ہے. Tuesday and Thursday is fine with me, timings are fine. اور like you said earlier کہ اگر تھوڑا گرامر کے لیے اگر آپ 10-15 minutes extra آپ دے سکتی ہیں تو جزاک اللہ خیر for that. And I'm fine with translation and word by word. And تفسیر کا ایسا ہے, I mean of course everybody loves تفسیر, but you know there are a lot of classes, lot of people do tafsir and lot of people start of tafsir classes. So I kind of prefer that if we focus more on the word by word. So yeah, I agree on that. yeah, translation and word for word is like more important to me. And of course grammar is, but like if کافی لوگوں کو مشکل ہو رہا ہے تو پھر we can like keep 10-15 minutes extra for grammar. جزاک اللہ. گرامر تھوڑا کم کر دیں تو صحیح ہے ایک دم. I second Nahid for the translation especially. I'm lost with the translation. تو گرامر کم کرنا مشکل ہوگا, لیکن نہیں جیسے چھوڑنا پڑے گا پھر. ہاں چھوڑ دے, کوئی امپورٹنٹ ہو بات تو آپ بتا دیں. That's what I said. کیونکہ ہم لوگ کو ہم کو معلوم ہے یہ جمع ہے مذکر ہے, تو اور میری سجیشن ہے یہاں پر کہ اگر آپ لوگ چاہیں, جو نئے لوگ ہیں جن کو گرامر ابھی مشکل لگ رہی ہے, آپ لوگوں کو تو گرامر آتی ہے, اگر لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں نئے لوگ, تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں ایک ریویو سیشن صرف ایک گرامر رولز کا رکھ دوں ایک دن,
مطلب اگر پرانے لوگ نہیں اٹینڈ کرنا چاہیں تو نہ اٹینڈ کریں, کرنا چاہیں تو کریں, لیکن ایک بیچ میں ایک سیشن ایسا کر دوں کہ میں ان کو صرف جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے تو اور لوگوں کو جن کو نہیں معلوم ہے, اف دے وانٹ تو میں ایک ریویو سیشن تیار کروں, ایک نوٹس بنا اور وہ کر دوں, اور اگر نہیں تو نہیں. السلام علیکم. میں آپ کا یہ جو آپ کہہ رہی ہیں سجیشن ایڈوائس مجھے بہت پسند آ رہی ہے. اگر آپ مہینے میں اگر ایک بھی کلاس لے لیں نا گرامر کی بیسک اگر سمجھا دیں جو نئے اسٹوڈینٹس ہیں, کیونکہ میں نے آپ کی کلاسز لی تھی, آپ کی کلاسز ماشاءاللہ سے بہت اچھی تھی, مجھے بہت پسند آئی تھی, لیکن میں کنٹینیو نہیں کر سکی تھی اپنی بیماری کی وجہ سے. تو اگر آپ تھوڑا سا اگر ہمیں اگر لے لیا کریں مہینے میں ایک دفعہ بھی اور شروع کی بیسک چیزیں سمجھا دیں تو میرے خیال میں تو ہمیں بہت مدد ملے گی. آپ بہت اچھا سمجھا رہی ہیں باقی ساری چیزیں, مجھے بہت آپ کی کلاس پسند ہے, ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھا کر رہی ہیں, بہت سمجھاتی ہیں, بہت ہی اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. سعیدہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو کلاسز اگر آپ کو ونس اے منتھ والی چاہیے نا, اس کے بدلے پھر آپ وہی کلاسز سن لیں جو ریکارڈڈ ہیں. اور یہ میں کہہ رہی تھی میں ایک کنڈینسڈ کریش کورس صرف ایک دن کا ایک سیشن کر دوں جس میں کوئکلی ہم جلدی سے بول دیں کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے. مطلب یہ بھی آپ کر دیں تو بہت مہربانی ہے, اور آپ کی وہ کلاسز بھی ہم اٹینڈ کریں, کیونکہ آپ جس طریقے سے بولتی ہیں, بات کرتی ہیں, لائیو آپ سے بات کریں, سوال کریں, بہت مطلب بہت ہی کلیئر ہوتی ہے چیزیں ماشاءاللہ سے. اور تفسیر کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ تفسیر آپ چاہتی ہیں کہ تفسیر تو جیسا آپ کر رہی ہیں کلاس لے رہی ہیں, مجھے تو بہت پسند ہے, تھوڑی بہت ہونی چاہیے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو بہت سی نئی چیزیں بھی پھر سیکھتے ہیں. اور بہت لوگ یہی کہتے ہیں کہ میری تفسیر جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا, لوگ یہ کہہ رہے ہیں میری تفسیر اس لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے کیونکہ میں وہ بہت سارے ٹینجنٹس پہ تفسیر میں نہیں جاتی ہوں. آئی فوکس آن دا ورڈ اینڈ آئی فوکس آن دی آیا, اور پھر میں اس میں سے یہ بولتی ہوں اس میں سے کیا لیسنس ہم سیکھتے ہیں جو کہ نارمل تفسیر میں نہیں ہوتی ہیں. مجھے بہت پسند ہے آپ جس طریقے سے کر رہے ہیں, مجھے ماشاءاللہ سے الحمدللہ مجھے بہت اچھا سمجھ میں آ رہا ہے. فرحت آپ بہت ہی ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں. فرحت خان کا Everything is good. Like how Nahi said, first you make translation, clear translation in وہ ہو گیا clear ٹھیک ہے, translation in Urdu. وہ ہو گیا, clear And then translation accepted. I will pay more attention on the translation, English پہ بھی اردو پہ بھی, اور clear repeat بھی کر دوں گی, ٹھیک ہے نا. حالانکہ اگر یہی ویڈیو آپ دوبارہ سے سن لیں گی تو باقیوں کا بھی ٹائم بچ جائے گا, وہ بھی کر لیں گے, لیکن ٹھیک ہے I will do it twice, ٹھیک ہے نا, 2 دفعہ انگلش میں 2 دفعہ اردو میں. اگریڈ. اچھا فرحت خان آپ کا مائک تھی جی. The timing is fine for me. Duration of the class is perfect. And the tafsir is perfect. You stay to the point. And like you said, I do other tafsir, so it helps me actually. And translation, word for word, is perfect. Grammar ka, I've never taken grammar. I've listened to some of your videos, but now I'm getting some of the words when you repeat it. I know it's plural. I know it's feminine. I know masculine. The only thing is you try to repeat in English, but if you can repeat the grammar in English, that would be great. And sure. I would really appreciate a crash course. I would love to take that. That's a very excellent idea. That's what I was about to ask. A crash course kar do, lekin mujhe thoda time lagega, maybe not next week, lekin main agar prepare kar lun, because I have to put everything together, right? Inshallah. That's fine. But other than that, I think the pace, the speed that you go at, everything is fine because I prepare ahead of time. I write down the ayah, so I just write the meaning in English. So اچھا مطلب بہت اچھی کلاس ہے آپ کی. الحمدللہ, یہ جزاک اللہ خیر, بہت اچھی کلاس ہے. زہرا آپ کچھ کہہ رہی تھی, آپ کی مائک کھلی ہوئی. جی السلام علیکم. الحمدللہ the days are perfect, timings are very good, and الحمدللہ آپ word meaning تو اچھا دونوں میں اچھا بولتی ہیں, اور I really like the way you say the تفسیر, اور to the point رہتی ہے, اور وہ ڈیٹیل میں بھی نہیں ہوتی ہے, اور مجھے تو بہت بہت زیادہ پسند آتی ہے. ورڈ ٹو ورڈ میننگ بھی بہت صحیح اور پرفیکٹ. اور the only thing میں تھوڑا پیچھے رہ رہی ہوں کہ میں گرامر کیونکہ میں نہیں جانتی, مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگ بہت بالکل بھی اکتا نہیں جاتے. بہت اچھا لگتا ہے کہ پھر بھی اس میں بھی کافی ورڈز الحمدللہ we are learning so many things because little bit تو تھوڑا بہت آئیڈیا ہے, مگر میں بالکل بھی اس سے اکتا نہیں جاتی ہوں. اور پرفیکٹ ٹائمنگ اور آپ کی اسپیڈ بھی بہت اچھی ہے, بہت الحمدللہ, جزاک اللہ خیر.
everything is perfect. मेरे लिए तो कोई भी चीज ऐसी वो नहीं. Alhamdulillah. Atiya, aapne, you closed your mic again. Yeah, no, auntie. Yeah, the timing and duration is perfect for me. Hmm. And tafsir is like, I really like it because it's to the point when you say. Can Amina, can you close your mic? And Arfa, वो मुझे अतिया की आवाज गूंज रही है. सिर्फ एक बंदा माइक खोले. Yes, Atiya, I couldn't hear you properly. Yeah. Yeah, the timing and the duration is good, really good for me. And the tafsir is also to the point. I really like it because like that's where, like, you know, when you translate and after that, when you go to the tafsir, so it's easier for us to, like, you know, it gets in the mind. So like the meaning of the words. So, you know, just after listening to the meaning and then you get the tafsir. So it's easier to, like, you remember the ayah also. Okay. And the translation, yeah, English, if you can just, like, you know, the Nahi, as Nahi said, like, you know, you can say one more time or two, Okay. like, you know, it will be good. That Otherwise, is yeah, and agreed. That is agreed. Translation I will do twice English, twice Urdu, and as many words I can think of to go. I know it's really hard for you because simultaneously, No, like English, alhamdulillah. like, नहीं, so- English Urdu में hard नहीं होता है. आप बोलो तो एक third language भी इंशाल्लाह. no, you say Arabic too, so Arabic 3 उसको languages. ऐड कर लेंगे, मेमन में ऐड कर लेंगे. That's Yeah, not a so problem. and the grammar also, like if you want the major words like that, we know that's like the small words like the min mutasir, the min munfasil, so we know those stuff. So if you can just skip, so yeah, that's so fine because with you are me. old students ना, old students के लिए ठीक है Yeah. ना. No, सबा alhamdulillah, it's a great class. सबा क्यों खामोश है? अस्सलाम वालेकुम. नहीं सुन रही थी और उसके साथ साथ सोच भी रही थी कि क्या मैं फीडबैक दे सकती हूँ. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल डेज एंड टाइमिंग्स आर माशाल्लाह परफेक्ट. सेकेंडली तफसीर आप जितनी भी कराती हैं और वो बिल्कुल हम ठीक कर रहे हैं माशाल्लाह तफसीर, क्योंकि हमारा फोकस इस वक्त ये है कि मेरा एटलीस्ट मैं अपने लिए कह सकती हूँ फोकस ये है कि वर्ड टू वर्ड, मतलब जब मैं कुरान कोई पढ़ रहा हो या इमाम साहब तलावत कर रहे हो तो जो भी वो लफ्ज कह रहे हो वो मुझे उसका तर्जुमा समझ में आ जाए, एंड आई विल कनेक्ट द टू, कि वो अरबी कह रहे हैं और मैं उसको ट्रांसलेट उसी में कर लूं कि बात हो क्या रही है, मुझे वो समझ में आ जाए. तफसीर तो बेसिकली बैकग्राउंड एंड डिटेल में जाते हैं ना हम, तो वो उसका फोकस मेरे हिसाब से बिल्कुल बस उतना काफी, क्योंकि तफसीर के लिए ये है कि हम डिटेल तफसीर की क्लासेस हम ले सकते हैं कहीं और पे भी. एग्जैक्टली, शमीम भी कह रही थी. आई एम फोकसिंग वर्ड टू वर्ड के वो क्या कह रहे हैं. अच्छा, इस क्लास से मुझे एक फायदा ये बहुत हुआ कि जैसे हम बहुत सी चीजें जब वर्ड पढ़ते थे ना तो हम नहीं मैं नहीं मिला पाती थी कि वो लफ्ज तो बड़ा आसान होता था, अगर अब मुझे समझ में आया कि वो हुम तो कुछ और है, बिही कुछ और है, और वो मेन कोर वर्ड ये है जिसको इस तरह किया जा रहा है. तो आई एम काइंड ऑफ वेरी मच एंजॉयिंग, माशाल्लाह मैं सीख भी रही हूँ. और अगर आप प्लीज वाकई एक क्रैश कोर्स करा दें, आपके लिए काम बढ़ जाएगा, लेकिन it will be a good reminder for the old students. नहीं, मैं कर दूंगी इंशाल्लाह. क्रैश कोर्स एक करूंगी, 1 घंटे का ट्राई करूंगी कि एक सेशन में पूरा कवर कर लें, लेकिन वो फिर रिकॉर्ड भी जरूर कीजिएगा. नहीं, रिकॉर्ड तो करेंगे इंशाल्लाह. और फिर उसको ये ताकि हम पीछे जा के उसको जब भी हो हम सुनते रहे ना, वो एक कोर्स का सुनना हमारे लिए आसान होगा बार बार, रादर वो फिर पूरे कोर्स पे जाने के ना रिव्यू. एग्जैक्टली, मुझे पता है, सुस्ती है ना. मैं तो आपको पता है मेरा अपनी. जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे. वैयाकुम. और कौन रह गई है? मिसबा, महनाज, फरीदा आप पुरानी स्टूडेंट हैं, लेकिन आप अरबिक की स्टूडेंट नहीं थी, आप वर्ड फॉर वर्ड की थी. फरीदा आप कुछ बोलें. मिसबा आप. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सबकी फीडबैक पॉजिटिव और डिस्क्राइब हो चुका. जस्ट शॉर्ट में मेरे लिए पर्सनली वर्ड टू वर्ड मीन्स अ लॉट. और वो जो आप बताती हैं ना ग्रामर में, जैसे कोई भी इंट्रिकेट वर्ड्स का और फिर उसको आप बता देती हैं फॉर्म 4 है, फॉर्म दिस है, वो बहुत हेल्पफुल है. तो उसको ज़रूर कंटिन्यू करें. और तफसीर जब आप कर रही होती हैं तो मतलब उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपकी जो भी उस चीज़ कोई वर्ड है और उसमें अल्लाह ताला ने फॉर्म 4 यूज़ किया या 3 यूज़ किया, तो उससे हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन कैसे होता है जो आप बताती हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो उसको कंटिन्यू करें या उसको एम्फसाइज कर दें या उसको बढ़ा दें, तो वो एक होता है ना स्पिरिचुअल कनेक्शन, बहुत अच्छी होती है. ये बस मेरा था.
कौन है? फ्रीदा प्लीज आप. जी अस्सलाम वालेकुम. मुझे आपका सिलेक्ट लगा, इतनी सी चीज होती हैं और मुझे ये सब चीजें इन में वो मुझे बहुत मुश्किल रही है. और दूसरा ये कि जो आपकी आवाज मुझे गूंजती आ रही है. Is Frida's voice clear? आप लोग को क्लियर लग रहा है? मुश्किल नहीं, नहीं, कुछ क्लियर समझ में नहीं, नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर समझ नहीं. में नहीं आ रहा. हाँ, फ्रीदा की आवाज आपकी थोड़ा चेंज किया, पता नहीं क्या मेरी हो रहा आवाज है. थोड़ी ये हुई. फ्रीदा आप आवाज भी नहीं आ रही है. फ्रीदा मैं आप, जगह जी अब आपका क्लियर मेरा. आपकी आवाज पता नहीं क्यों गूंज जाती है और बिल्कुल वो हो जाती. आप अपना लिख के भेज देंगी या आप वॉइस मेल पे करके भेज देंगी मुझे इंशाल्लाह, है ना? मैं वैसे बोल रही इंटरनेट की मेरी आवाज हो क्लियर हो रही. क्लियर आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है. आप कौन रह गए? सॉरी मेरा आप इसमें करूंगी. आई थिंक सब लोग हो गए. मैं देख लूं जरा. फ्रीदा, अमीना, जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. सारफा आपने दिया अपना फीडबैक? नहीं, अभी मेरा नहीं हुआ था. सॉरी मैं सॉरी. वो जी टाइम और डेज तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल सही है मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो. और ट्रांसलेशन भी बल्कि अब मुझे ज्यादा अच्छा, जिस वक्त आप पढ़ रही होती हैं, ट्रांसलेट कर रही होती हैं, तो मैं आगे से मुझे खुद आ रही होती है समझ में कि इसका ये हो जाएगा, ये आगे से मैं खुद करना की कोशिश कर रही होती हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब पढ़ रही होती हूँ, तिलावत करती हूँ अपने घर में भी, तो मुझे ट्रांसलेशन की समझ में आ रही होती है, तो वो बहुत अच्छा है. ग्रामर थोड़ी मैं करी है मैंने ग्रामर, लेकिन थोड़ी सी जरा ज्यादा किसी वक्त जब मैं एंजाइटी फील हो रही होती है तो मुझे ज्यादा लगती है, मगर वैसे मुझे ग्रामर भी बहुत अच्छी समझ में आ रही है, वो भी सही है. लेकिन अगर मैं ग्रामर अभी छोड़ दूंगी तो ठीक है ना, कोई बात जो नहीं. ठीक है. बस एक वो आप कैश जो कोर्स कह रही हैं, अगर वो कर लेंगी तो वो मैं लेना मैं ये चाहूंगी. तो बताऊंगी कि ये है भी, मतलब ये इसका पास्ट टेंस, ये प्रेजेंट जी है. हाँ, और फॉर्म्स बता रही हैं आप, वो बहुत अच्छे हैं फॉर्म्स में, वो नोट कर लेती हूँ मैं भी, वो बहुत अच्छा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय फॉर्म कर. ना हमको इतना जुबानी आता नहीं, मुझे अपना कह रही हूँ कि जैसे अच्छा. फॉर्म मैं सोचती भी थी तो ये फर्स्ट फॉर्म तो पता ही होता है ना, वो तो हम जी शुरू जी. से थ्रू आउट अरबिक 1 2 3 हम वही तीनों में हमने फॉर्म 1 ही किया था ना. फिर जब फॉर्म 2 से जब फ़अला से स्टार्ट करते हैं तो फिर चलो फ़अला भी याद हो जाता है, या तफ़अला याद हो जाता है, या कुछ चलो कुछ याद हो जाता है, फिर भूल जाता है ना कि कौन सा फॉर्म है और इसका क्या मतलब है इसका. तो वो थोड़ा थोड़ा मैं कहती हूँ, वो मुझे खुद भी, मैं चाहती हूँ कि मुझे भी वो बस ऐसे आ जाए जैसे बाकी चीजें आती हैं. जैसे हम लोग पढ़ते हैं फ़अला फ़अला फ़अलू पढ़ते हैं, फ़अलत फ़अलता फ़अलना, इस तरह तेजी से हम करते हैं ना गर्दाने, उस तरह से मुझे वो भी आ जाए. जी हाँ बिल्कुल. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ माशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. कौन रह गई आप में से? कोई रह गई हैं तो हम लोग कोई और डिस्कशन अब करना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम है 12:38 हो गए हैं. अगर अभी हम पढ़ेंगे तो हम बेरली 1 आयत को पूरी करेंगे. आप चाहें तो एक आयत को पूरी कर दूं, और आप चाहें तो मैं हम लोग आज हम पूरी डिस्कशन, और भी कोई है तो वो भी कर लें. कोई भी फ्यूचर के लिए चेंजेस, छुट्टियों का भी मैं आप लोगों से डिस्कस ये करना चाह रही थी कि नॉर्मली मैं छुट्टी नहीं लेती हूँ. मैं कोशिश, अल्लाह ताला बीमारी ना दे, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. मेरे जो डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स हैं, जो कुछ भी हैं, टेस्ट हैं, जो कुछ भी होते हैं, वो भी मैं इन दिनों पे नहीं रखती हूँ. ट्यूसडेज एंड थर्सडे को जब मेरी क्लास होती है, और संडे को, ये 3 दिन मैं, संडे तो वैसे भी कुछ नहीं होता है. तो ये मेरी कोशिश होती है कि मैं छुट्टी ना लूँ. अगर मेरे पास मेहमान भी आते हैं तो भी नहीं लेती हूँ छुट्टी, और मुझे कहीं जाना होता है तो मैं जहाँ जाती हूँ वहां से भी मैं क्लास लेती हूँ नॉर्मली यहाँ पर यूएस के अंदर. लेकिन ये होता है कि जब उम्रे पे जाते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो अभी पिछले 2 साल हो गए उम्रे पे भी नहीं गए कोविड की वजह से, तो जरा ऐसे बहुत ज्यादा उम्रे को मिस भी कर रहे हैं. तो कोशिश अब ये होगी कि अब देखें, महनाज भी कह रही है कि महनाज ने फीडबैक नहीं दिया. महनाज डिड यू गिव फीडबैक? कि महनाज गायब भी हो गई है. तो फिर ये कि वो भी अक्टूबर में जाने का कह रही है. हम लोग का प्लान भी अभी यही बन रहा है कि शायद अक्टूबर में हम चले जाएं उम्रे के लिए.
तो फिर अगर उम्रे के लिए जाएंगे तो जाहिर है फिर जद्दा तक जाते हैं, तो फिर ऐसा होता है कि पाकिस्तान भी होकर आए, तो फिर इंशाल्लाह ताला वो मेरे अगर छुट्टी में अगर लूंगी भी तो वो छुट्टी मैं CIU के साथ नहीं लेती हूँ। हमारे हर 10 वीक्स के बाद एक ब्रेक आता है CIU पे, वो मैं नहीं लेती हूँ। और वही मैं बता रही थी कि कॉन्वर्ट्स को तो थ्रू आउट रमज़ान में भी मैं पढ़ाती ही रही हूँ, मैंने नहीं एक भी छुट्टी नहीं की। और कोशिश ये होती है कि जब कोई और भी ये छुट्टियाँ आती हैं, ईद की तो देनी पड़ जाती है, तो बाकी ये कि कोशिश ये कि मैं छुट्टी ना करूं। आप लोग तो जब मर्जी छुट्टी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ, ताकि कम से कम मेरा एक सिलसिला जो है वो चलता रहे। तो अक्टूबर में अगर हम गए तो शायद अक्टूबर में मैं छुट्टी करूंगी। तो उससे पहले मैं चाह रही थी कि जितना भी अभी अगर हम ग्रामर छोड़, अभी मेरी वैसे नेक्स्ट 2-3 क्लासेस की प्रिपरेशन हुई है विद ग्रामर, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अपनी तैयारी पहले से कर लेती हूँ, दिन रात बैठती हूँ, चाहे नेक्स्ट डे क्लास हो या नहीं हो। मैं दिन रात, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मुझे भी टाइम लगता है प्रिपेयर करने में, तो मैं दिन रात बैठ के कर लेती हूँ, ताकि मुझे ऐसा हो कि जैसे समझिए कि आज क्लास थी, कल कोई मेहमान आ गए तो मैं क्लास की तैयारी नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे क्लास कैंसिल करनी पड़ेगी। तो आई ऑलवेज डू इट लाइक 3 वीक्स 4 वीक्स इन एडवांस। तो अभी मेरे पास एटलीस्ट 3 क्लासों का तो मेरे पास पूरा ग्रामर समेत तैयारी है, बट आई विल रिमूव दैट एंड आई विल कंबाइन, जो मेरी 2 क्लासेस की 3 क्लास को मैं 2 क्लासेस कंबाइन करके एक कर लूंगी, ताकि हमारा थोड़ा फास्ट हो जाए। और बीच में अगर मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह, तो फिर मैं वो जो एक क्रैश कोर्स करना है वो एक सेशन में इंशाल्लाह कर लूँ, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग गेस्ट, लेकिन कोई बात नहीं, वो आएंगे तो उससे पहले मैं मौका मिलेगा। जैसे आज थर्सडे, आज अब मुझे कल कोई क्लास नहीं है, आज मैं बैठ के इंशाल्लाह वो कोशिश करूंगी कि वो जितने मैंने ग्रामर लिखा है उस ग्रामर पर रिमूव करके और 2 को ज्वाइन कर लूँ, ताकि मेरे नेक्स्ट वीक की तैयारी हो जाए, दोनों क्लासेस की पूरी हो जाए, फिर उसके बाद मैं क्रैश कोर्स का इंशाल्लाह ताला कर लूंगी। तो अगर आप सबको ये मंजूर है तो एक क्रैश कोर्स इंशाल्लाह कर लेंगे। और फिर आपको जो भी पर्सनल फीडबैक और भी देना है, अच्छा हो बुरा, आपको पता है मैं माइंड नहीं करती हूँ, आप मुझे प्लीज अलहदा से भी दे दें। मैं आई जस्ट वांट थिंग्स टू गेट बेटर। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने ऑनेस्टली बताया, और मुझे ये भी खुशी हुई कि आप लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, और आप लोग ग्रामर भी एंजॉय कर रहे हैं, बावजूद इसके कि कुछ लोग जो नए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ग्रामर का एक कोर्स कर दूंगी, तो आपको मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं आपको सोर्सेज बता दूंगी कि आप लोग खुद देखिए। अब आप एडवांस, जैसे अब शमीम है, नौरीन है, सबा है, नाहिद है, ये सब जो अब ये अतिया, आप लोग सब एडवांस स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि आप लोग यहाँ से जाएं और ये ग्रामर निकालें, और यहाँ से जाएं आप ये निकालें, मतलब फिर मेरी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी I take things from a lot of places, तो इसीलिए आप क्लास अटेंड करें, लेकिन आप साथ साथ अपना ग्रामर खुद बिल्ड अप करते रहें। सोर्सेस हैं, आप सबको मालूम है, वैसे भी पता है, कॉर्पस कुरान अगर आप करते रहें तो कॉर्पस कुरान में बहुत चीजें हैं, लाइक इट्स अमेजिंग थिंग। उसका भी मैं आपको लिंक भी बता दूंगी, पर्सनली भी आपके साथ बैठ के जो नाहिद हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं एक सेशन अलग से लेके बताऊंगी कि आप इस तरह करें, तो आप खुद ब खुद आपका ग्रामर भी उसमें है, उसी में ट्रांसलेशन भी है कॉर्पस में भी। लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि मैं ट्रांसलेशन 10 ट्रांसलेशन, नॉट लिटरली 10 को देख के मैं एक वर्ड चूज करती हूँ जो मुझे बिल्कुल अप्रोप्रिएट लगता है, अकॉर्डिंग टू द हदीस एंड अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल थिंग ना। तो उसकी वजह से ये है कि आप लोग कॉर्पस में पूरी ट्रांसलेशन इंग्लिश की तो है, उर्दू की नहीं है, तो आप लोग कर सकते हैं खुद ही इंशाल्लाह, और कोई बड़ी बात नहीं है। और तफसीर आप लोग औरों की भी अटेंड, जैसे नाहिद भी बता रही हैं कि तफसीर बहुत लोग करते हैं, बट नाहिद का मतलब ये था कि मैं ज्यादा तफसीर में, नाहिद नहीं सॉरी शमीम ने कहा था कि मैं तफसीर में ज्यादा ना जाऊं, क्योंकि फिर तफसीर में जाते हैं तो और बहुत सारी तफसीर अवेलेबल हैं। लेकिन मुझे फीडबैक जो मिल रहा है, और मुझे खुद को ये महसूस होता है कि मैं तफसीर जो करती हूँ, मैं आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, लेकिन लंबा कभी कभी हो जाता है, बिकॉज आई ट्राई टू फोकस। अब जैसे तौबा का आया तो तौबा पे मैंने इतना लंबा कर दिया, और वो कुरान में हर जगह पे है, हदीसों में है, सब मिला के मैंने एक साथ कर दिया। इसी तरह कुछ और क्या आ गया मुझे याद नहीं अभी, लेकिन कोई भी ऐसी टॉपिक आ जाती है तो फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा उसी पे फोकस ज्यादा ऑन दैट पर्टिकुलर वर्ड करना शुरू कर देती हूँ ना। अभी जैसे इस्तिस्का का लफ्ज आया, तो इस्तिस्का का लफ्ज था तो सका यस्की जो है, अब उसके बारे में फिर मैंने आप लोगों को ये भी कहा कि हम सलातुल इस्तिस्का पढ़ते हैं, तो ऐसी थोड़ी थोड़ी चीजें, बट आई डिडंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ सलातुल इस्तिस्का कैसे पढ़ते हैं। अब वो डिटेल में जाने के लिए आपको हर जगह मिल जाएगी, तो ऐसी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहती हूँ। स्टोरी ऑफ फला और स्टोरी ऑफ फला, हमने फिरौन के बारे में बात कर रहे हैं सब, लेकिन मैं फिरौन का पूरा किस्सा लेके नहीं बैठती हूँ ना, फिर पूरा उस जमाने के बारे में, उस तमाम, फिर मैं उस चीज पे फोकस करती हूँ जो
تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ I'm trying to focus. تفسیر میں ٹرائی کرتی ہوں کہ میں شارٹ سے شارٹ کروں لیکن تھوڑی بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو ایک بات کہنی تھی مجھے جی کہ آپ کر جائیں, وہ جو آپ ٹینجبل میں جاتی ہیں نا, وہ ہیلپ ہوتا ہے بہت زیادہ. اس میں آپ 5-10 منٹ اوپر بھی لیں یا زیادہ بھی لیں تو وہ میں سمجھتی ہوں سب کے لیے ہیلپ فل ہوگا. یہ آپ نے بھی کہا مس کو, اور لوگ بھی کہتے ہیں, جو مجھے علیحدہ سے بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں تھوڑا سا جاتی ہوں, بیکاز آئی ٹرائی ٹو فوکس آن اٹ اینڈ آئی ٹرائی ٹو کائنڈ آف کہ میں اسی سے متعلق چیزیں بتاؤں. جی, تو وہ اچھا ہیلپفل ہے. کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تفسیر میں کبھی ایک دفعہ میں سننے بیٹھی تھی تو وہ کہتی میں ایک دفعہ یہاں گئی تو فلاں نے یہ کہا تو پھر یہ ہوا, تو یہ چیزیں پھر مجھے نہیں دل چاہتا ہے کہ میں یہ سب بتاؤں. ایک آدھ دفعہ وہ بھی آ جاتے ہوں گے کیونکہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ بندہ کوئی چیز پڑھاتے پڑھاتے کوئی بات یاد آتی ہے تو وہ بھی انسان کہہ دیتا ہے. تو وہ چیزیں مجھے پرسنل اتنی ساری کرنے کی نہیں دل چاہتا ہے, یا 10 ایگزامپل دے دوں ایک چیز کے لیے, وہ بھی میرا دل نہیں چاہتا ہے. تو بس ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہم جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں. اور کوئی Auntie, please continue with the tafsir because we like the tafsir. آپ جس طریقے سے تفسیر کر رہی ہیں مجھے بھی بہت پسند ہے, پلیز کنٹینیو رکھیں. جزاک اللہ خیر. بالکل, آپ پلیز کنٹینیو کریے. تو عطیہ میں اردو میں تفسیر کر رہی ہوتی ہوں. But now Auntie, I understand Urdu because I took a lot of your classes. So you understand Urdu, but you can't speak, right? Yeah, speaking is hard, yeah. And how about Auntie, grammar? Are you going to leave the grammar fully? Or like اب میں جس طرح اب میں گرامر پڑھا رہی ہوں جلدی, شروع میں پھر بھی میں تھوڑا سا سلو تھی, اب میں دیکھتی ہوں it's like min who, اب میں بولوں پھر میں کہوں گی min is حرف جر, who is ضمیر متصل, and then I will say it's masculine singular, and then so اس طرح کرتے کرتے مجھے لگتا ہے کہ it's like it's too much, monotonous ہو گیا نا. پھر ضمیر متصل, ضمیر, this is اضافہ, this is مضاف, this is مضاف الیہ, this is جار, this is مجرور. ایسے لگتا ہے کہ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا, آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہے فاعل ہر چیز کے ساتھ. اب میں کہوں گی یہ فاعل ہے, یہ مفعول بہ ہے, تو I'd rather give a crash course on what is فاعل and what is مفعول بہ. Now, instead of going to the whole course جیسے پہلے میں نے کیا تھا, وہ course was different. وہ course یہ تھا, we were progressing from Arabic 1 کہ ہم نے start کیا. ہم نے کیا کیا تھا, سب سے پہلے ہم نے کہا تھا اسم کیا ہوتا ہے, what is noun. Noun کا ہم نے بتایا what is noun, اور پھر ہم نے کہا what is an indefinite noun, what is a definite noun. I think this is how we started, if you remember. تو پھر یہ ال لگائیں گے. تو اب یہ چیزیں پڑھانے کے بدلے کہ یہ ہے, اور ہم ماں, اب اس وقت ہم نے پہلے ماں سے شروع کیا یا من سے شروع کیا, ہم نے کہا یہ ورڈز ہیں جو کویسچن مارک ہیں, اور یہ اب اس کے بدلے میں ایک ایک چیز اس طرح سلولی جانے کے بدلے I just go all together کہ this is حرف استفہام and this is like we say یا حل بولتے ہیں for asking a question. So I will go quickly in that crash course کہ بھائی یہ 2 words ہیں, اس سے آپ جب آپ حل دیکھیں یا دیکھیں automatically you know it's a question. ٹھیک ہے نا. پھر جب آپ دیکھتے کوئی چیز ہے this is something of something, it means it's a مضاف الیہ, it's an اضافہ, تو وہ آپ کو دیکھتے ہی ریکگنائز کرنا پڑتا ہے. And I think by now my old students already recognize, اور جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر نہیں ریکگنائز کرے تو انشاءاللہ ایک کریش کورس کریں گے. اس سے میں ایک ڈفرنٹ ٹائپ سے تھوڑا کر دوں گی. واٹ آئی ڈو از آئی ایم تھنکنگ, ابھی میرے دماغ میں ہے اس وقت, کہ میں یہ کہوں گی کہ منصوبات کیا چیز ہوتی ہیں, کس چیز سے آپ کا اسم منصوب ہو جاتا ہے. منصوب میں مطلب کب وہ نارملی تو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر فتحہ لگ جاتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ فتحہ لگے. آپ کو پتہ ہے نا منصوب از اے اسٹیٹ, نصب, رفع they are states, right, and jar, there are 3 states. تو اگر میں اس طرح سے بتاؤں کہ 3 states ہیں اور یہ کون سے state میں ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کیا بولیں گے, نبیون ہے, نبیین ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ رفع اسٹیٹ ہے اور یہ نصب یا جر اسٹیٹ ہے. تو اس طرح کر کے اگر میں بتاؤں گی تو آپ خود ہی جب آپ پڑھیں گے آپ کو پتا چل جائے گا نا کہ why is it نبیین, why is it not نبیون over here. Simple things like that. ابھی میرے پاس کوئی سامنے نوٹس نہیں ہے تو میں ایسے ہی آپ کو آف ہینڈ بول رہی ہوں کہ کوئی بھی چیز ہوگی, you will know کہ why this is, and then you will know why this is منصوب. Number 1, because it is مفعول بہ. ایک فاعل جب کسی چیز پہ جب ایکشن کر رہا ہوتا ہے تو فاعل is مرفوع and that becomes مفعول بہ, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کا طریقہ ہے نا, تو وہ منصوب. اچھا مصباح کہہ رہی ہے منصوب ایکسپلین کریں, لیکن میں آج ایکسپلین کرنے کے بدلے I will do it inshallah like in a more organized way نا. ایک سیشن بنا دوں گی کہ منصوب کون سے, مجرور کون سے ہوتے ہیں, کب ہماری
कोई वर्ड है वो मजरूर हो जाता है, कब वो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू आज हम ये पढ़ेंगे, हम आई विल गो थ्रू लाइक दीज आर द मंसूबात, दीज आर द मजरूरात, ओके, इस तरह दीज आर द मरफूआत। अगर मैं इस तरह करूँ ना तो आपके लिए मुझे लगता है ज्यादा इजी हो जाएगा। एंड दिस इज द फाइल, सो दिस देयर इज अ मफूल बिही, देन कैन बी 2 मफूल बिही, देयर कैन बी 3 मफूल बिहीज। इस तरह करके एक क्रैश करूं, फिर उसमें ना आपके वो जैसे हम पहले करते थे, हम इतने लंबे चौड़े एक्सरसाइजेस करते थे, याद है कितने एक्सरसाइजेस उन क्लासेस, अब वो सब छोड़ के ना आई विल डू अ रियली fast course if I can, inshallah. I'll try to make it as good as possible. I'm not sure अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा, but at least I'll give my best try, ताकि लोगों को एक, and that can be the reference point. अभी किसने ये बोला था कि सबा ने बोला था कि instead of going to the all 3 courses, या वो this can be a, it won't be even a review session, it will be a crash course, क्योंकि review वो होता है जो हम कर चुके थे, उसका review, you have done it once and you're doing it. ये मैं crash course कर दूंगी ना, फिर उसी में जैसे अब फेल अगर हम करें तो फेल में ज्यादातर हमारे पास फेल मादी, फेल मुदारे और फेल अमर ज्यादा, तो हम यही करते हैं ना। तो फिर उसके बाद और फिर फेल क्या है, देखिए नाम एकदम से भूल गई, जो भी है, अब वो सारों का मैं एक आपको क्विक एक टेबल में भी बता सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल द रूल्स। आई कैन से कि जैसे ये फेल मादी है, तो मादी में अगर हम कहते हैं फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना, तो ये हो गया ना। इस तरह पे फिर मुदारे में किया, तो वो टेबल्स को भी अगर हम एक दफ़ा रिवाइज कर लें, टेबल्स को आप अपने सामने रख लें, अपने जब आप पढ़ रहे हो वो टेबल्स का एक शीट अपने सामने, 2-3 शीट्स रख लें, या अपने लैपटॉप में रख लें या अपने फ़ोन में रख लें, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। आई थिंक दैट क्रैश कोर्स इज नीडेड एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि वो एक कर लें इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और आप इसको जो क्रैश कोर्स जो आप कराएंगे उसका आप रिटन भी भेजेंगे ना, ताकि हम प्रिंट आउट कर लें? वो मैं आपको रिटन बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लिखना नहीं पड़ेगा, वो एक टेबल्स होंगे या रूल्स होंगे, ग्रामर रूल्स होंगे, तो इट विल टेक मी अ लिटिल टाइम जस्ट टू प्रिपेयर इट। लेकिन आई थिंक वो फरहत खान, क्या अब ठीक है ना, मैं आपको लिखा हुआ भी एक दे दूंगी और उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी, बहुत हेल्प हो जाएगी फिर इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, जज़ाकल्लाह खैर। और आप एग्जांपल्स भी देंगे उसमें, राइट? यार शमीम, आप एग्जांपल्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। आपको सब आता है, आपको सब आता है, ठीक है ना, फिर भी आप कह रही हैं कि अभी मैं इसमें देखूंगी इंशाल्लाह। अब जैसे मैं अगर लिखती हूँ फ़अला फ़अला फ़अलू, तो फिर मैं नीचे से सेंटेंसेस भी बनाऊं तो बहुत मुश्किल। अब ज़हबू करूंगी, फिर मैं कहूंगी ज़हबा खालिद, ऐसे करके लिखने नहीं, मतलब बेसिक तो वो पहले फॉर्म्स तो ठीक है, लेकिन फिर आगे के फॉर्म्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है विदाउट एग्जांपल्स, इसीलिए फॉर्म्स जो मैंने आपके साथ कराए थे ना, फॉर्म्स 2 से लेके 10 तक मैंने कराए थे, वो जो मजीद फी के फॉर्म्स थे, वो जो फॉर्म्स है ना, वो तो मेरे पास ऑलरेडी हैं। दैट वाज आई थिंक 1 सेशन या 2 सेशन, कितना 2 सेशन में पूरा खत्म किया था। वो है हमारे पास, वो बहुत शॉर्ट है, उसको मैं एक जगह पे डाल के, इंस्टेड ऑफ वो हर एक के साथ मैंने 2-2 3-3 एग्जांपल दिए थे, आई जस्ट पुट देम इन वन, सो यू नो व्हाट द फॉर्म्स आर एंड आई कैन जस्ट गो थ्रू इट क्विकली। वो इतना मुश्किल काम नहीं है, असल काम ये डालना कि कब मंसूब आता है, कब मजरूर आता है, दैट इज द मेन थिंग, जो मैंने पहले इस तरह से नहीं पढ़ाया, बट आई थिंक वो हेल्प मिलता है। इदाफा भी इतना मुश्किल नहीं है, इदाफा भी आप सबको आ गया था, समथिंग ऑफ समथिंग है, तो वो भी इतना मुश्किल नहीं है। और पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ कॉमन वर्ड्स ऑफ द कुरान पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जब मेरी पुरानी क्लासेस थी उनमें मैंने कॉमन वर्ड्स इन द कुरान। अब वो कॉमन वर्ड्स इन द कुरान के बदले में आपको, आप हर वक्त, आप ऑलरेडी, वो मैं पहले दिन देती हूँ, अब पहले दिन आपको नहीं दिया, ठीक है ना, बिकॉज आई वांटेड यू नॉट टू लुक एट दैट पेज, नॉट टू लुक एट दैट, आई वांटेड यू टू लिसन टू मी एंड राइट इट योरसेल्फ, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे मसलन अल्लज़ी, अल्लज़ी है, अल्लज़ीना है, अल्लती है, अल्लाजाने अभी तक आया ही नहीं है, देखिए अल्लाई अभी तक आया ही नहीं है, पूरे कुरान में कितनी दफा आएगा, बट अल्लज़ी अल्लज़ीना हर वक्त आ रहा है। और आपको पता है अल्लज़ी किसके लिए, अल्लती किसके लिए, अल्लज़ीना किसके लिए। अब एग्जाम्पल देने के बदले ना, यू नो, आई कैन जस्ट राइट इट कि हाँ भाई ये ऊपर ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, और ये वाहिद है, ये जमा है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये मैस्कुलिन है, ये फेमिनिन है। इस तरह करके जब जिस तरह मैं टेबल्स बनाती हूँ, पहले भी मैंने आपको टेबल्स बनाए, वो टेबल्स मेरे पास हैं, आई कैन पिक अप दोस टेबल्स इंशाल्लाह एंड पुट इट ओवर देयर जस्ट टू गो। उसमें एग्जांपल्स की इतनी जरूरत नहीं, बट द मेन थिंग इज व्हेन इज इट, मुझे लगता है कि सबसे जो क्लैरिटी है ना वो इसमें ही आती है। मैंने देखा है कि मैं खुद थोड़ी देर मैं कुरान पढ़ रही होती हूँ ना, अब जैसे था
अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन रोज मैं जब पढ़ रही होती हूँ कुरान, जाहिर है आप सब भी रोज पढ़ते ही हैं, उसमें कभी कभी ऐसा लफ्ज आता है कि मैं एक सेकंड के लिए चौंक जाती हूँ कि वो कह रहे कि अभी जैसे वही सिंपल सी बात जो मैंने आपको उस वक्त बताया कि जब फताबा कहते हैं, ताबा अलैहि क्या चीज है, ताबा इला क्या चीज है। ताबा इला कि हम रिपेंट कर रहे हैं अल्लाह की तरफ, और ताबा अला क्या है, अल्लाह हमारी रिपेंटेंस को एक्सेप्ट कर रहा है। अब इस चीज को आप देखेंगे ना गौर से, तो आप जब पढ़ रही होंगी आपको पता चले इला है कि अल्लाह है, यू विल एट वंस नो कि क्या किसकी बात हो रही है, अल्लाह की, अल्लाह इज द सब्जेक्ट या हम सब्जेक्ट हैं। क़ाला मूसा लिखा होगा, लेकिन कभी अब मूसा जो है, मूसा का तो पता नहीं चलेगा ना कि ये मरफू है कि मंसूब है कि मजरूर है, क्योंकि मूसा मूसा नाम नहीं चेंज होगा, ईसा नाम चेंज नहीं होगा। इसी तरह कुछ चीजें मबनी है। एक दफा किसी ने पूछा था कि ये क्यों, ये तो हुम लिखा हुआ है, तो हुम तो नहीं चेंज होगा, होम इसलिए चेंज होगा कि अलैहिम अगर आ रहा है तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वैसे होम होम ही रहेगा, तो वो होम चेंज नहीं होगा। लेकिन हमें पता चलना चाहिए होम इस वक्त क्या है। इज लाइक किताब होम है, अगर किताब होम है या कुतुब होम है, कुतुब होम आ गया तो हमें पता है कुतुब होम मुदाफ मुदाफ इलैहि आ गया। तो ये इस वक्त हम जो है वो क्या है, वो मजरूर है, मजरूर नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमें पता है मुदाफ और मुदाफ इलैहि में द मुदाफ इलैहि इज ऑलवेज मजरूर, द मुदाफ चेंजेस। मुदाफ क्यों चेंज होगा, मिन आ जाएगा, मिन कुतुब, मिन क्या आएगा, मिन कुतुबिम, कुतुब भी तो चेंज नहीं होगा ना। तो इसी तरह की चीजें हैं, मिम बैतीना आएगा ना, तो वो बैतीना वो मुदाफ मुदाफ इलैहि है, लेकिन जब मिन आ जाएगा हरफ जर तो उसकी वजह से बैतोना के बदले बैतीना आ जाएगा। तो ऐसी चीजें आपको आनी चाहिए जब आप कुरान पढ़ रहे हो, तो आपको एग्जैक्ट पता चले कि ये कौन बोल रहा है, कौन फाइल है, कौन कर रहा है, और किसके ऊपर ये काम हो रहा है, मफूल बिही कौन सी है। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जैसे मेरी आदत हो गई है ना कि मैं कुरान पढ़ती हूँ तो मुझे एक एक लफ्ज का ग्रामर भी साथ साथ हो रहा होता है। तो इंशाल्लाह अब जैसे कौन बता रही थी कि आरफा कह रही जब वो पढ़ रही होती है उनको भी ग्रामर साथ साथ आ रही होती है। तो अल्लाह ताला हमारा बस हमारे लिए आसान कर दे। जज़ाकल्लाह खैर आप सबका। कोई और बात है तो कर लें, वरना इंशाल्लाह वी कैन एंड द क्लास। एंड आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और आप लोगों ने फीडबैक दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। One more comment, आप जब वो टेबल्स भेजेंगी तो उसमें इंग्लिश का लिखेंगी, राइट? ऑलवेज इंग्लिश। मेरी टेबल्स जो हैं वो इंग्लिश में ही होती हैं, क्योंकि फरत मुझे उर्दू में उसमें लिखना नहीं आता है लैपटॉप के ऊपर, ना मुझे फोन पे आता है ना लैपटॉप पे आता है। तो मैं अरबिक तो फिर भी थोड़ा लिख लेती हूँ, लेकिन उर्दू लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। राइट नोट्स इन उर्दू, पढ़ाती उर्दू में, लेकिन आप मेरे नोट्स देखेंगी तो आप हैरान हो जाएंगी। एक दफा कोई शेख मुस्तफ़ा से मैं कुछ डिस्कस कर रही थी, तो मैंने कहा लोग आई एम सेइंग दिस करके, तो मुझे उन्होंने देखा मेरे लैपटॉप पे, कहते यू राइट इन इंग्लिश एंड यू से इन उर्दू। मैंने कहा दैट्स व्हाट आई डू एवरी सिंगल डे। अब आप देखेंगे, अगर मेरे आप नोट्स देखेंगे ना, इस वक्त मैंने मुदाफ लिखा हुआ है तो मैंने मीम दाद अलिफ फा नहीं लिखा हुआ है, मैंने MUDAAF लिखा हुआ है। इलाही को मैंने ILAIHI लिखा हुआ है। तो इट टेक्स मी सो मच टाइम कि मैं बार बार वो लिखती हूँ, बिकॉज मैं उर्दू में लिखने जाऊंगी तो मुझे बहुत मुश्किल लगेगी जी। तो इंशाल्लाह everything will be in English. Normally I write in English and in Urdu. It's masculine, feminine. You will say that in English also is masculine, yes. feminine. Yes. Second. I write in English. मैं नहीं लिखती हूँ उर्दू में, उसमें वाहिद जमा नहीं लिखती हूँ और मुज़क्कर मुअन्नस नहीं लिखती हूँ, उस पे फेमिनिन और मैस्कुलिन ही लिखती हूँ। You see? क्योंकि that's easier for me. फिर मैं अगर उर्दू में लिखना है तो फिर I will have to ask फरहत मुझे प्लीज लिख दें, आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दें। फरहत को भेजूंगी, फिर वो मुझे लिख के भेजेंगी, फरहत बिलवानी को। तो आई हैव टू डिपेंड ऑन हर, मैं उनको भी तंग कर देती हूँ, तो इसीलिए मैं उर्दू में लिखने के लिए बहुत अवॉइड करती हूँ। तो जब मैंने ग्रामर के कोर्स किया था इससे पहले, जो किसस का जो कोर्स किया था और ग्रामर का कोर्स किया था, उसमें मैंने एक और फरा, आप जानते होंगे फरा हमारी उसमें आती है मस्जिद में, उनके हस्बैंड ने, उन्होंने कहा मैं आपको उर्दू में लिख दूंगा। तो मैं उनको इंग्लिश में लिख के भेजती थी और वो उसको उर्दू में लिख के मुझे भेजते थे। बहुत लंबा काम होता था, आई वाज डिपेंडिंग ऑन हिम ऑल द टाइम। तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अगर सामने मेरे इंग्लिश में लिखा है और मैं उर्दू बोल रही हूँ तो वो मेरे लिए आसान है। तो आप लोग कहते हैं ना, जो जहरा कहती हैं जिस तरह मैं चेंज करती हूँ फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, तो एक्चुअली इंग्लिश तो मेरे सामने लिखा हुआ होता है, वो प्रॉब्लम नहीं होती है। असल प्रॉब्लम जो होती है उर्दू में बोलना होता है, इसलिए मैं कभी कभी रुक जाती हूँ, कोई वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा होता उर्दू में। इंशाल्लाह यू विल गेट इट इन इंग्लिश। एंड अगर आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल कैन रीड इंग्लिश, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अगर कोई उर्दू इंग्लिश नहीं पढ़ सकेगा, मुझसे पूछेगा, तो वो फिर उर्दू में लिख लें खुद ही ना अपने लिए। मैं लिख सकी तो मैं लिख दूंगी।
چلیں پھر جزاک اللہ خیر again. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وعلیکم جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. السلام علیکم جزاک اللہ خیر. وإياكم وإياكم.